Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। RBI's Monetary Policy Committee cuts the repo rate by 25 basis points to 5.25%. Benchmark domestic indices close in positive territory. Sensex adds around 450 points to close at 85,712. Then Nifty settles at nearly 26,200. And India and Russia commit to boost bilateral trade in a balanced and sustainable manner. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। रेपो दर 5.25% पर आई। घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला। निफ्टी 26,200 के नजदीक पहुंचा। और भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार संतुलित और सतत तरीके से बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। And before we take our main stories in detail, let's have a look at the disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए खबरों का सिलसिला आरंभ करते हैं मौद्रिक नीति की समीक्षा से। The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee today voted unanimously to reduce the repo rate by 25 basis points to 5.25% while retaining a neutral policy stance. RBI Governor Sanjay Malhotra described the current economic conditions as a rare Goldilocks period with strong growth and controlled inflation. Since the October policy, the Indian economy has witnessed rapid disinflation, with inflation coming down to an unprecedentedly low level. For the first time since the adoption of flexible inflation targeting, average headline inflation for a quarter at 1.7% in Q2 this year breached the lower tolerance threshold of 2% of our inflation target. On the other hand, real GDP growth accelerated to 8.2% in Q2. Inflation at a benign 2.2% and growth at 8% for the first half of this year presents a rare Goldilocks period. He informed that the RBI has raised its GDP growth estimate for the financial year 2025-26 to 7.3%, up from the earlier projection of 6.8%. RBI has also lowered its CPI inflation forecast for the financial year 2025-26 to 2%, compared with the previous estimate of 2.6%. AKB GDP growth is based on inflation adjustment, when we call it the real GDP as opposed to the nominal GDP. 7.3% is now the new projection. We also are looking at foreign direct investment, which has gone up by almost 20% for the April to September period. Net exports have also been boosted by the rise in services exports. How do you see the Indian economy and the rupee particularly in this situation, in this Goldilocks period? Well, I think as far as the rupee is concerned, the Reserve Bank of India has done the right thing by allowing the market forces to play out without undue interference.
the interference is only limited to reducing the volatility of the rupee exchange rate, which is what it ought to be done. So if you look at in the last 1 year, the RER, which is the real effective exchange rate, which used to be around 107 or 108 last year, is now come down to 97, which essentially means the overvaluation of the Indian rupee is just going away, which is a good thing. And at the same time, it is a very good counter to the kind of tariff shock that the US gave. Now, when the US gave a kind of tariff shock by giving 25% plus 25%, this depreciation has virtually taken off a shock of at least 5 percentage points with this depreciation, because exports are once again probably will become competitive. Now, that is one. And the second thing is that the repo rate be coming down at a time when inflation is remaining benign will actually make the cost of doing business and cost of using money will come down significantly. And remember that this is the third time in the current calendar year that the cost of money, that rate, repo rate, has been brought down, first by 25 basis points and another 50 basis points, and then again by 25 basis points, all in this calendar year. So I think what we are seeing is that inflation remaining benign, growth forecast going up, and cost of money coming down, the home loan users seeing an opportunity of probably having some surplus on their account, because their loan liability, if you are on a flexible interest rate regime, you will get some extra money in your hands. So it might just lead to some sort of consumption demand going up. Remember, in the second quarter, consumption side of the economy, it already grew by 7.9%, so which is a good sign, but it needs to grow at a faster rate. Consumption in the economy must come back in a bigger way, and I think what the RBI Monetary Policy Committee has done is riding on high growth, riding on better agricultural output prospects, has brought down the cost of money, and hoping that next year's inflation remains benign, and India manages the external sector challenges with greater stability and comfort. एक भी यहाँ पर हम आम श्रोताओं की ओर से सवाल पूछना चाहूंगा कि 25 आधार अंकों की कटौती का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, हमें क्या लाभ इसका मिलेगा। अर्थव्यवस्था की गति अपने गति से चलेगी, लेकिन आम आदमियों के जीवन में सीधा इसका क्या अंतर आने की संभावना है? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया मनोज जी। इसका मतलब ये है कि जो लोन लेने की जो कॉस्ट होती है आम लोगों के लिए, उस कॉस्ट में थोड़ा बहुत सुधार आएगा, थोड़ा बहुत सहूलियत होगी अगर बैंकिंग व्यवस्था इस रेपो रेट की कटौती को आम जनता की ओर इसको पास ऑन कर दे। जो रेपो रेट जो होती है वो एक ट्रांसमिशन जो है उसकी एक लैग रहती है, और हम ये देख रहे हैं इस वक्त एक ट्रांसमिशन का लैग अभी भी है। जो पिछले जो 100% 100 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती हुई थी अभी तक, उसकी अभी भी ट्रांसमिशन जारी है। पर आपको ये भी देखना होगा कि इस 25 बेसिस पॉइंट्स के कटौती के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और एक काम किया है, वो है कि 1 लाख करोड़ की जो एक्स्ट्रा जो ओएमओ जो इंटरवेंशन जो मार्केट में होगा, उसे 1 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी जो आएगी मनी सिस्टम बाजार में, उससे भी काफी सहूलियत होगी, क्योंकि मनी एक कमोडिटी है और उसकी अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा हो तो उसके दाम घट जाएंगे, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट में कॉस्ट बढ़िया होगा। और 2% is the projection for inflation for the financial year 2026, and this is against 2.6% earlier. Just for the benefit of our listeners on Akashvani, AKB, could you tell us what have been the steps that we have taken which has ensured that our supply side economics has been taken care of, supply chain management issues have been resolved, and we can enjoy price levels which match our income, and more importantly we have disposable income
because there is always the expectation of a rise in your income levels on a year-to-year basis. Well, at the macro level, what we have seen is that we saw the budget that made the income tax on annual income of individuals up to 12 lakh almost zero. Then came the GST rate rationalization, which brought down the GST rate to a large number of items, as a result of which almost about 1 lakh crore of benefit has been given to individual buyers of all different kinds of income categories, because GST is paid from the poorest of the poor to the richest of the rich. So I think GST, and the third is the Kharif output and the agricultural estimates are looking good. GDP growth is showing that sign. The banking system is quite safe and stable. You are seeing a lot of foreign banks interested in buying Indian banks and making investments here. As you pointed out, gross foreign direct investment is still in a growth mode. So therefore, all these things will, to my mind, will have a beneficial impact on demand, because they will, GST and income tax, both these things will make more disposable surplus available with the people, and therefore it can fuel demand. The only question mark that remains is to what extent is this consumption demand recovery will be limited to a small section of society, or will it be widespread? Which is why it is very important that the cost of money comes down at an aggregate level as well as at the micro level, so that the MSME sector also takes advantage of this lower cost of money. So hopefully this will have a positive impact on the economy. Nobody wants a K-shaped economy. Absolutely. एक भी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कुल मिलाकर इन सब का सार यह है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, चक्का तेज चलेगा, मुद्रा का संचार तरलता बनी रहेगी तो अधिक गति से होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे आरबीआई चेयरमैन ने एक नए शब्द का प्रयोग किया और कहा कि रेयर अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसे अवसर कम आते हैं। गोल्डी लॉक्स पीरियड, क्या है ये गोल्डी लॉक्स पीरियड और किस रूप में ये अपना प्रभाव दिखाता है? देखिए, गोल्डी लॉक्स पीरियड उनका जो इंगित जो है, मैं समझता हूं कि एक तरफ तो अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, जो पहली बार 2016 के बाद जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम जब चालू हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तिमाही में आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी लोअर टॉलरेंस बैंड जो 2% होता है उससे नीचे चला गया है, वो 1.7 में आ गया है। तो ऐसा एक लो इन्फ्लेशन रेट एक चीज है। दूसरा, उसके साथ साथ दूसरी तिमाही में इस वर्ष में जो वृद्धि दर जो है वो 8.2% में हुई है। तो एक तरफ ग्रोथ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। उसी के कारण अगर आप देखें रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ का अंतर बहुत ही कम हो गया है, और उसकी अलग एक इम्पैक्ट होती है। पर इस वक्त ग्रोथ ज्यादा है, इन्फ्लेशन कम है। एक्सटर्नल सेक्टर की जो आपकी जो करंट अकाउंट बैलेंस जिसे हम देखते हैं उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। वो अभी भी 1.2 व 1.3 जीडीपी के प्रतिशत में अगर देखें अभी भी अटका हुआ है। तो सारा एक्सटर्नल सेक्टर, आपका इन्फ्लेशन और ग्रोथ, तीनों चीज आपके कंट्रोल में है। और एक चीज जो है वो रुपये की जो एक्सचेंज रेट है उसमें ग्रेजुअल एक डेप्रिसिएशन हो रहा है। उससे हम क्या देख रहे हैं कि एक साल पहले जो आपका जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 107 का था, अब वो 97 में आ चुका है। इसका मतलब हमारी जो रुपए डिप्रिशिएट कर रही है पर वो रीर के साथ साथ आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो टैरिफ शॉक जो थी उसको संभालने की जो हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि भी हुई है। यानी आम लोगों की जुबान में कहें तो बल्ले बल्ले की अवस्था है, आनंदमय अवस्था है हर किसी के लिए। आइए आगे बढ़ें। अच्छी खबर है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 नवंबर को समाप्त सप्ताह में $1 अरब 80 करोड़ बढ़कर $686 अरब 20 करोड़ पर पहुंच गया।
इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 3 अरब 50 करोड़ डॉलर घटकर 557 अरब डॉलर के आसपास आ गई। यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के दाम में उतार चढ़ाव से ये कमी आई। दूसरी ओर देश का स्वर्ण भंडार 1 अरब 60 करोड़ डॉलर बढ़कर 105 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। विशेष निकासी अधिकार एसडीआर में 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की वृद्धि हुई और ये 18 अरब 62 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारतीय रिजर्व बैंक की राशि 1 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर 4 लाख 77 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई। आइए चलें अब शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि शुरुआती कारोबार में थोड़ी नरमी थी, लेकिन बाद में रेपो दर में कटौती की घोषणा ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 447 अंक उछाल के साथ 85,712 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 153 अंक बढ़त के साथ 26,186 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो मिला जुला रुख था। मिड कैप बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.2% की तेजी आई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.7% नीचे आ गया। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty closed over 0.5% higher today. The indices opened on a negative note, but rebounded after the RBI announced a rate cut and traded with gains for most of the intraday session. Sensex surged by 447 points to close at 85,712, while Nifty added 153 points to settle at 26,186. The broader market indices, the BSE closed mixed. Mid-cap index advanced 0.2%, while the small-cap index declined almost 0.7%. नजर डालें सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों पर तो 24 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लाभ कमाने वालों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे रहा। इसके शेयरों में 2.5% की तेजी आई। फिनसर्व को 2.1% और बजाज फाइनेंस को 1.9% का मुनाफा हुआ। उधर घाटा उठाने वालों में सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रहा। इसके शेयर 3.5% लुढ़क गए। एटर्नल के शेयरों में 1.1% की कमी आई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 0.8% नुकसान के साथ बंद हुआ। Across the sectoral indices, the BSE 14 out of 21 sectors ended with gains, except utilities and consumer discretionary, which remain unchanged. Among the top gainers, focused IT advanced 0.9%, BankX gained almost 0.9%, and metal as well as tech both rose over 0.7% each. Among the key decliners, services slipped almost 0.6%, capital goods dipped over 0.4%, and industrials dropped nearly 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,342 companies declined, 1,805 companies advanced, and 181 remain unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर, लेकिन रुपए की स्थिति पर नजर डालने से पहले एक त्रुटि सुधार, छोटा सा त्रुटि सुधार। हालांकि त्रुटि तो बड़ी है, लेकिन सुधार छोटा सा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर घटा है, बढ़ा नहीं है, जैसा कि हमने पहले आपको सूचना दी। इसमें कमी आई है, ये 686 अरब 20 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। आइए अब चले अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार, जहां $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे कमजोर हुआ है। 89 रुपए 99 पैसे के स्तर पर आकर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.03 पर चल रहा था। एक भी बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। मुख्य क्या कारण रहे आज की तेजी के पीछे? देखिए, जो आज जो स्टॉक मार्केट में की जो बात है, वो मैं समझता हूं कि एक हमारी अर्थनीति का बहुत ही बढ़िया आईना है जी। आईना मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें जो कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने अच्छा बताया है, सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया है आज। उनकी सारी जो, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहें, बजाज फिनसर्व को कहें, बजाज फाइनेंस को कहें, ये टॉप विनर्स हैं आज की मार्केट में। और उनका कारण ये है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक समीक्षा में, नीति की समीक्षा में जो नजर आया कि उससे रेट घटाने से उनकी जो बॉटम लाइन जो है, उनकी जो मार्जिन जो है, उसमें एक बहुत बड़ा एक उछाल आएगा। उसी के कारण स्टॉक मार्केट ने दिखाया। पर दूसरी ओर देखें तो जो कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं आपके, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, इटर्नल जो जोमेटो चलाता है, टाटा मोटर्स जो है, ये सारे में, उसके साथ अगर आप जीएसटी के जो लेटेस्ट जो अक्टूबर के नंबर देखें आप, उसमें थोड़ी बहुत जो नरमी जो आ रही है उसी को दर्शाती है कंजम्पशन स्टॉक्स के ऊपर। सो आज का स्टॉक मार्केट
का, जैसे भारत में एक जो द्वैतता जो है, जो डुअलिटी जो है, वो इसमें नजर आ रहा है कि एक तरफ आरबीआई के मौद्रिक समीक्षा की नीति से हमें दिख रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा काम दिखा रहा है और उसी के लिए स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चला गया। उसके साथ साथ जो कंजम्पशन स्टॉक जो हैं उनमें डिमांड की थोड़ी नरमी दिख रही है। तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर टाटा मोटर बोलिए या इटर्नल बोलिए या हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलिए, उसमें नरमी दिख रही है। तो वही मैं आज के स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। कुल मिलाकर यदि हम बाजार का स्तर देखें तो अब ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू किया है। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो अच्छे बने हुए हैं लगातार। तो यहां से क्या शेयर बाजार अब ऊपर उठता दिख रहा है लगातार? मुझे लग रहा है कि यहां से जो आपकी जो यूएस के साथ टैरिफ नेगोशिएशन जो हमारी चल रही हैं या चलने वाली हैं, या जो फ्रेमवर्क, बायलैटरल फ्रेमवर्क की बात हो रही है या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा, क्योंकि यूएस हमारा सबसे बड़ा ज़्यादा ट्रेड पार्टनर है। उसके साथ साथ जो हमारे जो विभिन्न एफटीए में जो बात हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरी बात जो है, किस तरह का बजट फरवरी में वित्त मंत्री पेश करेंगी। अगर ये तीनों चीज अगर हमारे पॉजिटिव जोन में आते हैं, टैरिफ एग्रीमेंट अच्छा होता है और आपका बाकी एफटीएस अच्छे होते हैं और बजट ठीक से आता है, मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव एक सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख दिखा। निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7%, हांगकांग का हिंगसेंग सूचकांक लगभग 0.6% बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 1% से अधिक लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में मामूली गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स लगभग 0.6% ऊपर, फ्रांस का कैक 40 0.4% और लंदन का FTSE 100 भी 0.1% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US stock market, Wall Street closed mixed yesterday as uncertainty over a potential Fed Reserve rate cut persisted. Among the major indices, a Nasdaq composite index gained over 0.2% and the S&P 500 inched up 0.1%, while the Dow Jones Industrial Average fell marginally. Unemployment insurance claims for the week ending November 29 showed a notable decline, with initial claims falling by 27,000 to 191,000 compared to the previous week's revised level. This marks the lowest level of initial claims in the past 3 years. Very briefly, I know the big story is whether the Fed will cut the discount rate or not, but their unemployment level, they have had, it has crossed 1 million mark. It's comparable to COVID. How does the US government address it briefly? Well, in the sense that the US government will have to get down to the ground reality. They will have to ensure that jobs return to the market, and for which probably they will need to have a relook at their entire tariff policy. In more news, India and Russia have reaffirmed their shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. A joint statement following the 23rd India-Russia Annual Summit highlighted that both sides have agreed to continue the consultations on enabling the interoperability of the national payment systems, financial messaging systems, as well as the central bank digital currency platforms. परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। Prime Minister expressed confidence that India is on course to become the world's third largest economy by steadfastly pursuing a policy of reform, perform and transform. Very briefly, running out of time, 38% of Russian output has been purchased by India. Is likely to go up
or is it likely to come down? Well, in the sense that if you look at the 2030 statement that is coming out, the details of which are still to be awaited, I think India and Russia are going to be on a strong footing as far as economic cooperation concerned. Whether their share goes up or down is a matter of time and how the agreement and the details of that get implemented. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 0.1% down at $63.19 per barrel, while WTI crude was trading 0.2% down at $59.55 per barrel when reports last came in. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सहकारिता क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है और जल्दी ही देश में सहकारी टैक्सी, सहकारी बीमा और सहकारी समितियों के बीच सहयोग जैसी पहल शुरू होगी। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नाबार्ड IAMAI अर्थ समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में श्री अमित शाह ने दोहराया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। हम कुछ ही सालों में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमारे जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स है वो 50 करोड़ से ज्यादा कोऑपरेटिव एक्टिव मेंबर बनाएंगे और जीडीपी में सहकारिता का योगदान 2023 से 3 गुना बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री कह लें कि सहकारिता क्षेत्र पर लगातार जोर दे रहे हैं और नई नई पहल देखने को मिली है। किस दिशा में जाते देख रहे हैं? देखिए, सहकारिता के ऊपर जोर देना मैं समझता हूँ कि अगर एक आर्थिक दृष्टिकोण से एक ऐसा सुधार कहूँगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि जो भागीदारी जो होती है वो संपूर्ण एक डेमोक्रेटिकली हर इंसान जो कोऑपरेटिव का सेगमेंट होता है उसी उसमें भागीदारी होती है। इसमें कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई नहीं होता, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से अगर सहकारी क्षेत्र को और भी बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि इस वक्त तो हम डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, तो अगर ये इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहा है और जिस तरह से टैक्सी की बात हो रही है, सर्विसेज सेक्टर की बात हो रही है, इससे जो गिग इकोनॉमी जो है उसमें भी अगर कोऑपरेटिव सेक्टर का अगर प्रभाव बढ़े तो मैं समझता हूं कि अर्थनीति के लिए जो वृद्धि जो है अभी तक जो एक एक्विजिशन या क्रिटिसिज्म कहिए कि ये थोड़ी बहुत अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, वो अनइक्वल ग्रोथ के जो चार्ज जो है उसको हम ठीक तरह से एड्रेस कर सकेंगे। Let's now have a look at the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 0.5% up at 1,30,800 rupees per 10 grams, and silver was trading over 2.2% up at 1,81,700 rupees per kilogram a short while ago. आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.8% बढ़त के साथ 1,28,305 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 1.9% बढ़त के साथ 1,77,999 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहाँ पर एक भी सोने पर हम समझना चाहेंगे आपके विचार। सोना ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है यदि निवेश की दृष्टि से देखें तो। अब जिस स्तर पर है यहाँ से निवेश के लिए सोना कितना उपयुक्त साबित होगा? देखिए, इस वक्त जो सोना जो है वो ये दर्शा रहा है कि एक जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी कहिए और पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल है उसी को दर्शा रहा है, इसीलिए लोग सोना की ओर इतनी ज़्यादा मुड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो चाह जो है ये चलती रहेगी जब तक ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमारे ये अंधकार से दूर ना हो। But the big news has been silver because it's almost touching $60 per troy ounce, and the major consumption of silver has been India. Well, that is also because there are a lot of economic activities that are critically dependent on the use of silver. And silver is not just a domestic item of consumption, but it is also for industrial purposes. यानी अपनी औद्योगिक और चाहत के चलते चांदी की चमक लगातार तेज रही है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि नमस्कार।
And before we close, a reminder of the headlines. RBI's Monetary Policy Committee cuts the repo rate by 25 basis points to 5.25%. Benchmark domestic stock market indices close in positive territory. Sensex adds around 450 points. Nifty settles at nearly 26,200. And India and Russia commit to boost bilateral trade in a balanced and sustainable manner. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.